is Arzu Kubra and I am a student of Class 9 of Auckland House School. It is an honor and a privilege to interview such an eminent educationalist and a prolific writer of Shimla City, who has penned more than 18 books. Meet Dr. Usha Bande. Dr. Usha Bande, a former fellow of the Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, is an academician of repute and a widely published author, translator, and a reviewer. Translating from Hindi and Marathi into English and writing reviews is her passion. She has been a regular contributor to Indian literature and other literary journals. She retired as principal, Government College, Arki, District Solan, Himachal Pradesh. She has a large number of published books and papers. She also lectures on soft skills, including communication and interpersonal skills, emotional intelligence, gender issues, and gender sensitization. We welcome you, madam. Thank you, Arya. Thank you so much. Vyaktatva Baatcheet Ka Karwa talk show is specially curated for children and young writers, readers, to allow us to engage with senior writers and artists in a very casual manner. This pilot project will feature 52 personalities, and our interviewers will be school, college, or university students. These interviews will be held offline at Brews and Books Cafe, Shimla, which also offers an open library for all to use on the concept of borrow, exchange, donate, and will be streamed live for all our patrons, which can be watched on Kikli's Facebook channel and Himachal Tonight's YouTube channel. This event is produced by the Kikli Book Club, which was founded by Vandana Bhavra, and our collaborates our media partner Himachal Tonight, the Association of Book Clubs, and the Food for Thought Foundation. I'd like to begin by asking you, ma'am, if you could please tell us something about yourself. That's good. But you have already said so much about me and in general. So what should I add? I say that I taught in RKMB for quite a long time, say 35 years. And after that, I was posted as principal in Arki, Government College Arki. After my retirement, I got fellowship at the Indian Institute of Advanced Studies. Later, after the fellowship was over, I went to Shantiniketan to teach there for 3 months. It was their guest home. So that is what it is. And just now I pass my time giving lectures, as you have mentioned, soft skills and others, and now I am here today. Thank you, ma'am. Ma'am, could you please share a few interesting aspects of your early years? A few memorable moments? Where? In Shimla? Yes. Shimla has been life and death for me. We came to Shimla in 1960. And since then, I studied here. I worked here. I retired from here. And memories are many. Immediately, they don't come to mind immediately. But it has been a very friendly time. And they have accepted me. I have accepted them. I can't think of staying anywhere except in Shimla. This is what I feel about you. So that is it. And ma'am, your biodata says that you've translated from Marathi and English to Hindi. So ma'am, how come madam you know Marathi? That's a question I always wait for that. Or I always dread that also. Because first thing, I know Marathi is my mother tongue. I belong to Mother. Long back, we settled in Shimla. My father being in the army. So, moving around here and there to various places, ultimately he was transferred here before his retirement, and we found the town very good, as I said, quite friendly. And there was, I think we settled very comfortably.
So that's how, as you asked me, that's how I know Marathi. But to tell you the truth, it being my mother tongue, I know Marathi reading because Marathi is very simple. It has got Devanagari script. So reading is not, but I haven't studied Marathi formally at all because we have been in the north also. So that is it. Ma'am, we know that you've translated many works. So now what inspired you to translate? Okay. When I was studying, I started writing short stories, but I used to hide them, as all the young girls do. Never published. And my mother complained, she keeps on writing something. And all the time, whether she studies or keeps on writing some stories or something. So my father talked to me. Then it was a very sane advice he gave me. At that time, I was in graduation, so quite grown up to understand things. And he said, so sorry. Why don't you take a translation? In translation, you get to cover two languages. The one from where you translate and the one into which you translate. Don't write anything about which later on you will feel a little or ashamed or hesitant to own it. I like it. And so this is how he gave me a book, presented me a book of Marathi, and I did translate that book, but the manuscript was lost in France. It was never published. At that time, things were in 60s. Things were very now. It is very easy. We have got our computer. Everything is you feed in the computer. There is no question of losing things. At that time, posters which are. After that, I didn't have the guts or time, or even I was busy with my studies, so I didn't try for a very long time. Okay? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, do you think translations are a good option or do they miss the essence of original story? Okay, this is a very good question. And I find doing translation very challenging, but very interesting. Because you keep on thinking of two languages. Say there is a one word in Marathi. You are translating that word is the same, but its connotation is different. Then you keep on, you must know the connotation. You keep on thinking about it. I tell you a small example. शिक्षा आप जानते हैं वर्ड? Yes. शिक्षा Yes. क्या है हिंदी में शिक्षा का मतलब? एजुकेशन, Education. पढ़ाई. मराठी में शिक्षा वर्ड है, मगर शिक्षा मीन्स पनिशमेंट. So if you say उसको शिक्षा देनी चाहिए, it means उसको punishment देना चाहिए. So like this, small words I used to juggle with them. कि इसका हिंदी में कैसे होगा, इसका इंग्लिश में कैसे होगा, and that gave me, that improved my language, Marathi also, Hindi also, and it helped me a lot, and I found it very interesting. And moreover, as far as society is concerned, there is not much of a difference. Translating from English into Indian language is a little easy because the social give and take, social ideas are, but not so easy because we are the same. Some thoda difference होता है. That. Yes, ma'am. And ma'am, how has been the most challenging aspect of writing for you? What has been the most challenging? No, I divide my writing into, say, academic writing. Academic writing, that is my subject was English literature. So academic writing takes a lot of time and lot of energy because you have to do research और आपको ऐसी authentic चीजें सामने लानी है. The second is I was very fond of, for Vandana also, very fond of journalism, but it was only writing articles. I am not formally trained or anything, but I write to that. That is my another passion. और उसके बाद creativity. अब poem को लिखते रहते हैं, वो तो बचपन में चलता है. But mostly I used to write stories.
Then I shifted from stories to article. And I did find it very challenging. But the thing is, you write one thing today, and you see it after 4 5 days or a week, and you think कि मैंने लिखा था इसमें ये भी गलती है इसमें ये भी गलती है ये होता है बाकी आइडियाज आने चाहिए and when you get ideas then it is up to you but the thing is when you write a particularly creative writing you're all the time thinking and I'll tell you an interesting thing while going we used to stay in summer तो पैदल ही जाना होता था मुझे जाते जाते मैं सोचती जाती थी मेरे को कोई सामने से आया हुआ देखा नहीं सो सम ऑफ द पीपल से उषा नहीं है हमारी तरफ तो वाई सो देन आई कंट्रोल माइसेल्फ नहीं भाई जो जानने वाले आते हैं उनको नमस्ते तो कर दो सो दैट हैपेंस इन राइटिंग Yes, ma'am. Ma'am, how are personal experiences and creation of fictional worlds and characters connected or related to each other? in story Yes, ma'am. how characters happen Yes, ma'am. what happens the story comes to you slowly and gradually it unfolds and you start thinking of characters एक को आपने बुरा आदमी बना दिया एक बहुत अच्छा है तो वो किसी ना किसी जगह आपको इंटरकनेक्ट तो करना होगा सो दे कीप ऑन जैसे यू मेक अ फैमिली यू इमेजिन अ फैमिली उसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं so that is the characters keep on linking to each other and that is a great challenge as you asked me in the previous thing in writing short story the character should not go out of your hand if the character goes out of your hand it's very difficult to control that and so you have to make it convincing if the character is not convincing the things are not convincing then the story doesn't happen suppose now I am writing a story based in Himachal. And I write about Nariyal ka पेड़ यहाँ पे मैंने देखा तो that would be highly incomplex या सुपारी का पेड़ आ गया और वैसे ये नहीं हो सकता so that topography society these things you have to so these are challenges in a way also and you have to be alert also that's Yes, ma'am. Ma'am, भाषा का कितना ज्ञान होना चाहिए? अरे भाषा का ज्ञान तो endless endless क्योंकि क्या है ट्रांसलेशन में तो और इन राइटिंग में तो आप तो भाषा आपकी अगर वीक रह गई तो आपकी स्टोरी वीक रहेगी भाषा वीक होगी अच्छा भाषा ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि बड़े बड़े वर्ड इस्तेमाल करो शशि थरूर इज एन एक्सेप्शन vocabulary is fantastic but for us I think if I write something if you do not understand that my writing is fake as fake okay तो इसलिए भाषा के भाषा कैसे बनाते हैं ये बताओ तू बोल पढ़ना read if you like a word if you like a sentence उसको नोट करके है ना तो उससे आपको लगेगा कि हर वर्ड हर जगह इस्तेमाल नहीं होता each word has its own personality so if you write the wrong word at a wrong place so उसकी सारी जान निकल जाती है आपके राइटिंग ओके सो भाषा की छोटी छोटी खूबियाँ आनी चाहिए कंस्ट्रक्शन आना चाहिए ये भाषा तो एंडलेस Yes, ma'am. हाँ है ना मैम, क्या आपने भी दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ सुनी है? हाँ हमारे घर में बहुत कहानियाँ सुनाने का रिवाज था माई फादर वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर एंड माई दादी वॉज वेरी गुड शी वॉज हाईली एजुकेटेड फॉर दैट मैटर एट दैट टाइम when women never used to go out she was highly educated she was a teacher also so वो बहुत कहानियाँ सुनाती थी तो कहानियों का असर हुआ है और हमको पढ़ने के लिए उस वक्त तो आते थे ना चंदा मामा अभी भी हैं Yes, ma'am. मगर अभी ऑनलाइन आपने पढ़ा Yes, ma'am. हाँ तो चंदा मामा की कहानियाँ हम पढ़ते थे तो बड़ा अच्छा लगता था और भी कई कई मैगजीन्स थे वो हम पढ़ते थे इंग्लिश के भी हिंदी के भी एंड वी वर एक्सपोज्ड तो वो और कहानियाँ सुनो तुमको अच्छा लगता है Yes, ma'am. तो कहानी से कहानी पढ़ती है तुम भी बनाए एक कहानी जहाँ खत्म हो जाती है ना तो
जब आप मतलब सुनाते थे तो कहानी खत्म हो जाती थी ना, मेरे को बड़ा बुरा लगता था। देन सोने चली जाती थी तो उसको मैं आगे आगे बढ़ाती थी। तो जो बचपन की होती थी वो लिखी तो कभी नहीं, बट इट हैपेंस, यू कीप ऑन just in childhood or even now also. There are lots of books in Jane Austen. Many people have rewritten Jane Austen, fan fiction. It is called fan fiction. तो वो लिखते हैं। We do these exercises in school sometimes. हाँ होता है ना, हाँ यार। Ma'am, where do you sit and write? Do you follow a discipline routine? डिसिप्लिन तो नहीं हो सकता, बिकॉज यू नो व्हाट, आई वाज a teacher. So whenever I used to come back, whenever I used to come and tell me, I would sit in my room. But there are examples of really good literature coming out by those women writers in particular, because they don't have place to write. And they used to write at night on the dining table. और ये बहुत का है हैरी स्टाउ, इसने वो आइकल जॉन्स कैपिट, हाँ उसने वो उन्होंने डाइनिंग टेबल पे लिखा, सब लोग जब सो जाते थे, कहीं जगह नहीं होती थी घर में। देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी बाय पंजाबी राइटर एंड शी सेज हत्या, एंड शी सेज मेरे को सारा दिन कहीं पे कहानी लिखने को तो टाइम ही नहीं मिलता, कहाँ बैठूंगा। एक छोटा सा तो कमरे का सेट था उनका, अजीत कौर की कहानी। एंड देन शी सेड रात को मैं चली गई डाइनिंग रूम में, मैंने कहा कहानी तो बहुत दिमाग में जब कहानी आती है तो कुछ नहीं सोचता। मैं चली गई डाइनिंग रूम में, जैसे मैंने लाइट ऑन की चूहा भाग गया, चूहा भागा तो बर्तन गिर गए, बर्तन गिरे तो धड़ 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 आवाज, उधर से मेरे इन लॉज भाग के आए, उधर से मेरे हस्बैंड भाग के आए, मेरे को खूब डांट पड़ी। उस दिन मेरी कहानी की हत्या हो गई। So these are some of the, but luckily I have my own room, so there was no. Ma'am, we would request you to read one of your pen stories with us. Okay, then I will have to read. But I would like to tell you how the story, how the idea comes to the mind. Yes, ma'am. है ना, स्टोरी ऐसे नहीं आ जाती, but stories are all around us. मगर हमको जैसे हमारी चारों तरफ आवाज है, मगर टेलीफोन में आवाज, आपके मोबाइल में आवाज तभी आती है जब आप उसको स्विच ऑन करते हैं और बोलना शुरू करते हैं, आती है या नंबर लगाते हैं। Likewise, everywhere there are stories around us. Even now we are sitting, I am speaking, all these people have come over here. This becomes a story. But it should be woven, as you asked me one question, कि कैसे character written in this is how, this is the art which is required. Okay, and now I will tell you, first I will read the story. I will read the story first in Hindi. उसके बाद थोड़ा okay हम इंग्लिश वाली भी पढ़ेंगे। I write as you know in Hindi as well as English. This is a story written for children, a smaller one, so I will do that. Okay, and just after that I'll tell you how the idea came to me. So that you might, and आप लोगों को भी उससे क्या होगा, आइडिया ग्रास्प करने की आदत पड़ जाएगी। Yes, ma'am. है ना, अपने चारों तरफ उसमें कैसे आइडिया ग्रास्प करते हैं, कैसे आइडिया दिमाग में एक आता है, देन इट कीप्स ऑन चर्निंग। जब हम चर्न करते हैं तो मक्खन निकलता है ना, Yes, ma'am. तो उसी तरह चर्निंग होती है, और जब चर्निंग होती है दिमाग में तो मक्खन निकलता है, मतलब स्टोरी। Okay, now I'll start the story. It is here. So I'll read that book. Who are you? Just a minute, we are.
interrupted. दोनों देखो I myself, I have lost watering. But anyway, I was so confident कि मेरे पास स्टोरी एकदम से मिल जाएगी. चलो जो कहानी मिल रही है बचपन ये है. गोरी सिल्की की ब्राउन बूट, स्वीटी खरगोश. अब ये बहुत छोटे बच्चों के लिए लिखी है, इसलिए इसमें हमने खरगोश और जानवर को लिया है. स्वीटी खरगोश की बेटी सिल्की बड़ी प्यारी, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती. जब हंसती तो सामने के दो दांत मानो खुद ही हंस पड़ते. उसकी हंसी आंखों में उतर आई और लगता जैसे दो काले मणि चमचमा रहे हैं. सभी दोस्त नाते रिश्तेदार सिल्की को बहुत प्यार करते थे, और क्यों न करते, सिल्की थी ही ऐसी. वैसे उसका नाम पूर्वा था, पर सब लोग उसे सिल्की कहते थे क्योंकि वह रेशम के गोले से सुंदर और नरम थी. सफेद मुलायम बालों वाला शरीर, खरगोश थी ना, गुलाबी होंठ, गुलाबी नाक और काली चिमचम आंखें. खरगोश देखा नजदीक से. पूर्वा अर्थात सिल्की स्कूल जाने लायक हुई तो माता पिता ने चंपक बाग नामक स्कूल में दाखिला करवाया. इस स्कूल की खासियत यह थी कि यहाँ रंग रूप, खाना पीना, जाति प्रजाति आदि के भेदभाव नहीं थे. सब बच्चे एक से थे. बड़े बड़े ताकतवारों के बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे और कमजोरों के भी. शिक्षक शिक्षिकाएं सभी को प्यार से, लगन से पढ़ाती थी. सिल्की मिलनसार जाते ही उसके कई दोस्त बन गए. सबसे वो प्यार से खेलती, टीचर मिस का बहुत आदर करती थी, अपना काम समय पर पूरा करती और कुछ समझ में न आए तो पूछ भी लेती. यही कारण था कि टीचर मिस उससे बहुत प्यार करती. यद्यपि सिल्की अपने सारे साथियों से मिलजुल कर रहती थी, फिर भी सई खरगोश उसकी खास दोस्त थी. सई बड़ी शरारती और रोक भी जाती थी. कई बार सिल्की को उटपटांग बातें भी सिखा देती थी. सिल्की बेचारी सीधी थी, उसकी बातों में आ जाती, फिर गलत बातों के लिए माँ से डांट पड़ती. एक दिन सिल्की की क्लास में एक नए बच्चे ने प्रवेश किया. बाकी बच्चे अपने नए साथी के चारों ओर मंडराने लगे. कुछ शरारती बच्चे उसे छेड़छाड़ भी करने लगे. नए लोगों को करते हैं ना, एक तरीके से रैगिंग भी करनी चाहिए. कुछ चिढ़ाने लगे, कुछ मित्र बन गए. सिल्की दूर खड़ी होकर सारा खेल देखती रही. उसे चिंटू खरगोश जरा भी अच्छा नहीं. उसका नाम चिंटू था, वो भी खरगोश. सिल्की घर गई तो उदास थी. माँ ने पूछा, क्या हुआ सिल्की, आज महारानी साहिबा का मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? पहले तो वो कुछ नहीं बोली, फिर गुस्से से बोली, मुझे नहीं अच्छा लगा. क्या नहीं अच्छा लगा? माँ ने पूछा. वो चिंटू खरगोश. वह नाव को चिढ़ा के बोली. कौन कौन है चिंटू खरगोश? माँ, हमारी क्लास में नया आया है. तो तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि लोगों को एकदम से बुरा कहना ठीक नहीं है. क्या किया है उसने? माँ, मुझे नहीं अच्छा लगा, वो काला है. माँ समझ गई. चंपक वन की दक्षिण की ओर रहने वाले कुछ खरगोश मटमैले और ब्राउन रंग के होते हैं. चिंटू वहीं से आया होगा. माँ, शायद वह नहाता नहीं होगा या फिर साबुन नहीं लगाता होगा, तभी काला है, तभी मैला है. किसने कहा ये सब? माँ ने पूछा.
सिल्की बोली, सही ने बताया। उस शाम माँ बाजार गई और सिल्की के लिए एक महंगी बार्बी डॉल लेके आई। गुड़िया देखकर पहले तो बहुत खुश हुई सिल्की, नाचने लगी। पर माँ ने जब पैकेट खोला, गुड़िया पकड़ाई, तो सिल्की का मुंह खुल गया। मुझे नहीं चाहिए ये काली कलर, सिल्की रुकते हुए बोली। क्यों बेटे? माँ, ये काली है, तुम जानती हो ना, कुछ बार्बी डॉल्स बहुत बुरी होती हैं, कुछ ब्लैक भी होती हैं। मुझे मेरी तरह की चुंदल चुंदल गोली गोली नहीं चाहिए। चलो रहने दो इसे, फिर किसी दिन मैं बाजार जाऊंगी ना, तो इसे बदल के गोली गोली चुंदल चुंदल गुड़िया तुम्हारे लिए लेके आऊंगी, तुम्हारे। इतना कहकर माँ ने ब्राउन गुड़िया उठाकर रख दी। कुछ देर बाद माँ ने देखा सिल्की उस ब्राउन गुड़िया से बतिया रही थी, सही भी उससे बातें कर रही थी। कई दिन बीत गए। सिल्की स्कूल से आते ही अपनी ब्राउन गुड़िया उठाकर घंटों खेलती रहती। अन्य बच्चे भी उसके पास आने लगे और उसकी गुड़िया बड़ी लोकप्रिय हो गई। एक दिन माँ तैयार होके आई और बोली, सिल्की, आज मैं बाजार जा रही हूँ, लाओ अपनी ब्राउनी मुझे दे दो, बदल कर गोरी गुड़िया लेके आओ। नहीं, मैं अपनी ब्राउनी नहीं दूंगी, सिल्की ने एकदम से पीछे कर दिया और रोने लगी। मैं नहीं दूंगी। क्यों? माँ ने पूछा। माँ, यह सुंदर है, यह प्यारी है, सिल्की बोली। पर सिल्की, यह नहाती नहीं होगी, सुंदर और गोरी भी नहीं है, तुम्हें और सही को गंदी लगती होगी, जैसे तुमको वो खरगोश भी गंदा लगता है ना, चिंटू खरगोश, वैसा। माँ ने गुड़िया को उठाते हुए कहा। नहीं माँ, सिल्की ने गुड़िया खींच ली और पीछे छुपा ली। माँ समझ गई सिल्की को अपनी ब्राउनी से प्यार हो गया है। तब माँ ने सिल्की और सई को पास बिठाकर समझाया कि काले गोरे ब्राउन सभी भगवान के बनाए हुए हैं। लोग बुरे विचारों से बुरे होते हैं, बुरे कामों से गंदे होते हैं, रंग से नहीं। सिल्की चतुर थी, एकदम से बोली, पर माँ, अब तो चिंटू खरगोश हमारा दोस्त है, हमें अच्छा लगता है। माँ ने सिल्की और सई दोनों को दिल से लगाया, उनका सिर चूम लिया और उनका ऐसे ही मिलजुल गया। That's it. कैसी लगी? अब हम ये बात करते हैं, अब तुम्हारे मन में आया होगा तुम्हें कैसे आइडिया कैसे आता है ना। अब ये आइडिया ऐसे आया, हम लोग एक बार कोई लोग आए थे कुछ सिनेमा में बात कर रहे थे, वो लेडी परेशान थी, वो मेरे को कहने ऐसे सबके साथ कर रही थी कि मतलब मेरी बेटी ना, एक उनके स्कूल में कोई नया आया है, वो इधर रहती थी चाणक्यपुरी में, और वहाँ पे इंटरनेशनल लोग आते ही हैं जो एम्बेसडर्स वगैरह के बच्चे, तो एक अफ्रीका से, तो ही नेचुरली ही वाज एन एफ्रिकन एंड यू नो दे आर डिफरेंट। तो वो लड़की आके घर में बोलती है, मेरे को नहीं उसके साथ खेलना, मेरे को नहीं अच्छा। तब उसने सोचा मैं क्या करूँ, फिर उसने ये आइडिया निकाला और ये आइडिया मेरे दिमाग में चलता रहा, और जब ये आइडिया मेरे दिमाग में चलता रहा तो ये एक कहानी इसको बदला हुआ है। जब हम लोगों के आइडियाज नहीं ले सकते, तो चोरी हो जाती है, दैट इज नॉट एथिकल। तो हम क्या करते होता है, सबके साथ होता है, आइडियाज अपने होते हैं, उनके साथ इधर अपने एक्सपीरियंसेस आपके जुड़ जाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, और उसके बाद जब हम लिखते हैं वो हमारा ओरिजिनल ये है। This is how, this is what it is. I wanted to read a very good story of say, Pari. Well, I don't know what it is called, but anyway, आपको तुम्हारा जो question। मैम, जैसे कि अभी आपने कहानी पढ़ी, तो मैम आप बच्चों के लिए भी लिखती हैं। मैम, आपको यह अनुभव कैसा लगा और आप इस मोड़ कैसे मिली? मेरे को बच्चों के लिए लिखना अच्छा लगता है। एक तो उनकी सारी भोले वाली चेहरे मेरे सामने आते हैं, उनकी शरारतें आंखों के सामने आती है, और बच्चे जब हम अच्छी कोई चीज़ देखते हैं तो हमको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हम किसी को बोलो ना ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये किसी को नहीं अच्छा लगता। तो बच्चा
बहुत बच्चों को, मगर हम अगर उनको ऐसे दूसरे तरह से खाना ऐसे नहीं खाया, ऐसे खा लिया ना, तो वो एक अलग ढंग से आप उनको वही बात बताते हैं। अब इसमें क्या बात बताएंगे? रंग की बात। वही क्या है, किसी भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान कर दिया है। मगर अगर हमने ये डायरेक्टली बताया किसी बच्चे को, उसको नहीं खास पसंद नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा। अब स्टोरी के माध्यम से समझ, तो एक ही मन में सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने एक चीज बच्चों को बताई और ऐसे बताई कि शायद वो इसको ग्रहण कर लेंगे। दैट इज वन थिंग। सेकेंड, बच्चे बूढ़े होते हैं, उनको हम अच्छी चीज जो देंगे, उनकी अपनी चमक होती है जब अच्छी चीज उनके सामने आती है, तो तुम्हारी आंखों में भी अच्छी चमक है, पाठ पढ़ के। तो ऐसा होता है, तो वो भी एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। आई लाइक टू राइट फॉर चिल्ड्रन। Yes, ma'am. Ma'am, what is your perspective on the role of literature in society and its ability to evoke change? Literature plays a very important role in society. Literature has changed society. So the pen is my. There are lots of philosophers who say literary works have caused revolutions. So that is what literature can change social structure. Social structure is very strong. It cannot be changed within small. But ये ऐसा है, दरवाजे पे आप खट 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 करते रहते, दरवाजा खुलेगा तो सही ना, तो ये ऐसा है। या there is a very beautiful poem, and that they say not the struggle, not available. The waves keep on banging against the door. They go back, but a time comes when through small cheeks, the water goes down, and sometimes it can burst. So that's say not the struggle. I used to like that poem when I used to teach it. I used to teach it with a grade of I don't know. But anyway, so this is what it is. Society में नहीं चेंज, but change. But literature धीरे धीरे mental change लाता है। आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले लेडीज पढ़ रही हैं। आज कितने बड़े बड़े शाद वाला भी चैनल चलेंगे ना, उन्होंने ही साइंटिस्ट है जिन्होंने काम किया। इस तरह धीरे धीरे काम सोसाइटी करती है। So what was your question? What is the role of literature in society? This is a very important entertainment. Yes. Entertainment, you like, as the book is in your hand, you forget the book. If you are an avid reader, that is it. अगर आपको क्लास की किताबें पढ़नी भी अच्छी लगती है, मगर हमको ऐसे स्टोरीज पढ़नी अच्छी लगती है सब। हमको एक बहुत खूबसूरत नॉवल था, टेल ऑफ टू सिटीज, अच्छा था, मेरे को पता था, तो क्योंकि वो कोर्स में था, तभी पढ़ा जब एग्जाम के टाइम आ गया। बट वैसे चार्ल्स डिकेंस के सारे कहीं पढ़े। So that is. I was telling you about experience. How experience comes. How we gain experience. I'll tell you one example. Have you ever heard the name of Thomas Hardy? Yes, ma'am. Which book have you read? I haven't read it, but You like it. yes, ma'am. Right? So Thomas Hardy, he could write women's sentiments very well and women's emotion. So किसी ने पूछा कि आपको कैसे इतना, how can you go deep into women's sentiments? So then it came to light that he used to stay in a small village in Wessex country in England. So he used to study and work in London. जब वो घर आता था तो जो आसपास की लेडीज थी वो आ जाती थी, women, वो पढ़ी लिखी थी। They used to ask him, Thomas, please write a letter for us. तो उनके हस्बैंड को ये चिट्ठी लिखता था। जब हस्बैंड की चिट्ठी आती थी या फियांसी की चिट्ठी आती थी, ये पढ़ के सुनाता था। This give and take of various letters showed him, because women used to tell how they are feeling in the absence of their husband, or वो भी जो भी वो बताती थी, he could understand even the small nuances of their sentiments. And when he started writing, a case of Dibble, a pair of blue eyes for me, mayor of Casterbridge for me, ऐसा सुंदर चित्रण है, such beautiful descriptions not only of nature but of human psyche.
So this is what I wanted to tell you when I said that experiences come from various sectors. It is not always a writer's autobiography. If I write something, it is not my autobiography. But your ideas, my ideas, they collide, and my experience gives a kind of expression. Yes, ma'am. Ma'am, do you feel children today really understand the sense of literature? The gap between the old generation, the classics, and the new Gen Z writings? बहुत बहुत gap है, but you know, we have to like it, and we have to struggle to like it. I think sometimes. अब for example, ये जो है आपका थ्री इडियट्स, जल्दी से नाम बताओ। चेतन भगत, है ना? तो earlier when I read the book, I could not really identify it. You have to identify it. But later when I started reading, I said, hey, जिंदगी तो इनकी यही है. Then I saw that Three Idiots to picture देखी, बड़ा अच्छा लगा. So this is how the change is there, because the world is changing very fast, and our ideas are really stale for you. But we lived that era, so that was important for us. Now you are living in a different era. Today's ideas, today's world is important. For I can't say कि भाई computer मत ये तो बोले कि थोड़ा कम करो, but we can't say you totally ban it. So when you write, you will write. So ये तो पता है change है, नई generation और old generation. But you know what? अब नई जनरेशन पूरी तरह से तो ओल्ड को नहीं समझते, ओल्ड तो नहीं को समझते, पसंद ना करें वो बात और है, वो समझते हैं. Ma'am, reading and writing is an evolving process. So, what kind of pointers would you like to share with the young writers? Very important. Yeah, you are one of the aspirants, right? So, first is very important thing is read. Your reading should be very strong. But it is not a joke, but it is a fact, an anecdote from Mulk Raj Anand's life. Mulk Raj Anand, one young man comes to Mulk Raj Anand, he says, sir, I want to write. आपकी इतनी बुक्स लिखते, मेरे को भी बताओ कि लिखना कैसे. Mulk Raj Anand said, get plain paper, take this pen, start writing, and come in the evening and show me what you have written. The man comes in the evening, that young man, कहते मेरा पेज तो पूरा ब्लैंक है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आया, सारे दिन में आइडियाज नहीं आए. Then he said, you can't write like this. Ideas come when you mix up in the society, when you try to understand people, when you see with your open mind, when you see the world. So this is, and write good. I don't say write moral stories, बच्चों के लिए, but I say आजकल बहुत ट्रैश लिखना है, ऐसा ट्रैश नहीं लिखना जो हमारे वैल्यूज के साथ है. So values, I won't say कि 18th से 18th century की values we have to follow. We have to follow new values, but within that values there are values. Within new values there are also values. So value oriented, read a lot, have command over your language. If language is weak, your writing is weak. Even if you are writing an essay for your school, अब देखो एक को 10 में से 6 मार्क्स मिल जाते हैं, एक को 9 मिलते हैं. Why? Language. Expression. Language doesn't mean only language. Language has got expression, vocabulary, right word at the right place. You write something, leave it for 3-4 days. Then see where the words can be. I stage a lot of words in, although after so much of experience, after a while when I see my writing, I change words. अरे लगता है इसका connotation नहीं. अब connotation, every word has got a meaning, denotation and connotation. एक word आप बोलो homely. Homely in English has a good sense. अच्छा घर के साथ अच्छा है. But homely in American language doesn't have that sense. Homely मतलब you ordinary.
She has got homely wit and ordinary wit. But she is a homely girl. अपने घर बार को संभालने वाली होगी. ऐसे लैंग्वेज की छोटी छोटी खूबियाँ आनी चाहिए. And that comes when you read, when you concentrate. Yes, ma'am. Ma'am, any childhood memory that you'd like to share that still amuses you? Oh, I could get your question. Ma'am, any childhood memory? Ah, okay. You know what? Lots of childhood memories are there, but immediately you can't think of it. But because you know what? We have been moving around. My father moved around. We have been moving around place to place, place to place. So we never stayed at one place. But I don't remember any childhood memory. There are so many. Childhood तो पीछे चला गया ना. बहुत पुराना हो गया. मगर हाँ ये है कि जगह जगह हम गए हैं, ट्रैवल किया है. हाँ, ट्रैवल किया है और ट्रैवल राइटिंग आई लाइक अ लॉट. तो ट्रैवल में बहुत अच्छी अच्छी वो होती हैं, चाहे वो चाइल्डहुड का है चाहे यंग गर्लहुड का है. कई बार अच्छी अच्छी एक्सपीरियंसेस आते हैं. वन एक्सपीरियंस ब्रीफली आई टेल यू. आई होप आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ द टाइम. Okay, we had gone to Cuttack in Odisha. That was a conference, and two of us. One person was from Delhi, myself, and we thought we'll go to हमारी गाड़ी में बहुत टाइम था. We'll go to Konark and go then to भुवनेश्वर, और उसके बाद हम गाड़ी पुरी, एंड हम गाड़ी बाद में भुवनेश्वर से पकड़ ली. हमारी भुवनेश्वर की ट्रेन थी. उस दिनों एयर की इतनी पॉसिबिलिटी नहीं थी, एयर थे ही नहीं वहाँ उस एरिया में. सो टू रशियंस दे सेड ओके हम भी आपके साथ चलेंगे. आप दो ही जा रहे हैं, हम 5 हो जाएंगे. तो टैक्सी एंड ऑल दैट व्हाटएवर जैसा होता है. वी सेड ओके वेल एंड गुड. अच्छा, कंपनी इज ऑलवेज गुड, राइट. द मोर द चीप. हम लोग कोणार्क गए. कोणार्क सुबह सुबह निकल गए. कोणार्क देखा और सारा लगेज भरा हुआ था. उसका भी हमारा भी गाड़ी में कहीं जगह नहीं थी, और वो थे भी बहुत बड़े. और उसके बाद कोणार्क से हम लोग चल पड़े. We had hardly crossed 6 miles when the fan belt of the car accident. अब वो कहता है कि तो फैन बेल्ट लेने जाना पड़ेगा. दैट मैन उसको लैंग्वेज पर हमको उसके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम. दैट मैन वेंट टू कोणार्क. अब कोणार्क में फैन बेल्ट की दुकान नहीं हो सकती. मैंने बोला तो उसको समझ में नहीं आया, वहाँ नहीं मिलेगा, टूरिस्ट प्लेस है. देन he came back after 1 hour and he brought एक वान की रस्सी नहीं होती. मैंने देखा, मैंने कहा जब साहब वान की रस्सी से अगर गाड़ी फैन बेल्ट चलने लगे गाड़ी, तो कोई भी नहीं खरीदेगा फैन बेल्ट. तो वान की रस्सी से ही हम चलाएंगे. उसको खास ये जोक नहीं समझ में आया. चलो जिसने लगा दिया, गाड़ी 1 किलोमीटर गई, रस्सी टूट गई. उसने और बांधी और 1 किलोमीटर. By 1 o'clock, we were still only 10 kilometers away from home. उसको बोला तुम वहाँ जाओ, पुरी जाओ और लेके आओ फैन बेल्ट. उसने इस गाड़ी को हाथों उस गाड़ी को हाथों, कोई ना रुकी. 1-2 रुकी. इसका इंजन चेंज था, फैन बेल्ट इसके भी लग नहीं रहा था, किसी और का स्पेशल फैन बेल्ट. एक हमारे सामने से उन दिनों वो आई थी फोर्ड आइकॉन हमारे सामने से गई, और 1 घंटे के बाद फोर्ड आइकॉन आई वापस और वहाँ गई हमारे साथ. तो फिर आदमी उधर के आया. He said, listen, ladies and gentlemen, when we went from here, you were here still. After 2 hours, we are coming back after 2 hours. You were still here. You don't understand the implication. We are in the east. Within half an hour it will be dark, and you are in a jungle. This area is not safe. At that time it was not safe, particularly the white were there with you. So what you do is, what happened? Abhi told him, say, okay, you send your driver with us. I will go and get him a fine bill and he can come. But this gentleman, he went to Puri,
got a fan built for him, and he came back 28 kilometers. He came back to meet the driver. Then he said, मुझको ऐसे लगा कि इसको बस कब मिलेगी, ये कब पहुंचेगा, बस तो अपने हिसाब से जाएगी, इसलिए हमने इसको छोड़ा. This man helped the driver to fix the fan. After that, हमारे साथ गाड़ी अपने आगे रखी, नहीं हमारी गाड़ी के पीछे रखा. मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मैं साथ में हूँ, आप इसकी हम आपको छोड़ आएंगे अगर आपको प्रॉब्लम. दिस वाज आपसे देखा 2-4 किलोमीटर गाड़ी चली. Then people long distance to Calcutta, they were from the port. So this is how some experiences in life they do make you feel that yes, humanity is इंसानियत है दुनिया में. एक छोटा सा है ये एक्सपीरियंस. अच्छा, बहुत छोटेपन का तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा मुझे. Yes, ma'am. Ma'am, you have a keen interest in folk literature also. So, ma'am, is there anything that makes you feel connected to it? अरे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है folk literature. I like folk literature because it is something very different. थोड़ा सा मैजिक है, थोड़ा सा सुपरस्टिशन है ना, थोड़ा सा लोगों के जो जहाँ का folk literature वहाँ के लोगों की जिंदगी है, और इतना इमेजिनेशन है कि कद्दू भी चलता है और किसी लेडी के मेंढक भी बच्चा हो जाता है और बाद में पता लगता है कि तो प्रिंस है. ऐसी चीजें बड़ी मजे की होती हैं. एंड फोक लिटरेचर इज कनेक्टेड समथिंग बिल्कुल अलग. मैंने बहुत फोक लिटरेचर पढ़ा. हिमाचल के फोक लिटरेचर मैंने पढ़ी थी. हिमाचल का पढ़ा है, महाराष्ट्र का पढ़ा है, और जगह का पढ़ा है, बंगाल का बहुत पढ़ा है. तो उनमें कहीं ना कहीं जुड़ता है लिटरेचर. फोक लिटरेचर पे जब मैंने एडवांस स्टडीज आई सॉ लॉट्स ऑफ बुक्स ऑफ फोक लिटरेचर. सो दे सेड उन्होंने ऐसे एक बुक ऐसे बनाई है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंड्रेला स्टोरी. यू नो सिंड्रेला स्टोरी? Yes, ma'am. एवरी गर्ल लाइक्स. सो उन्होंने कहा कि सिंड्रेला के वर्जन 920 वर्जन्स आर देयर ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल डिफरेंट वर्जन. सो इस तरह के हमारे इसमें दूसरी 2 स्टोरीज थी इंडिया की, उनमें हमारा कल्चर की तरह उसमें डिफरेंस है. सो दैट इज सो आई लाइक. Yes, ma'am. Ma'am, A Box of Stolen Moments. This is an intriguing title of one of your books. बहुत स्कूली. Yes, ma'am. So, ma'am, would you like to share something about it? about what? Ma'am, A Box of Stolen Moments, the book which you अच्छा हाँ, stolen moments, my book. Yes. This is interesting idea to talk about it. Actually, what happened when I told you that I started writing long back, and I wrote stories. Some of the stories, short stories, they were published in Hindustan Times, सैनिक समाचार, ऐसे कई मैगजीन. मिरर आता था बॉम्बे से अपने यहाँ का, ईव्स वीकली, in these various papers stories. But I never had the guts to get them published in book form. उसके लिए guts चाहिए, स्टोरी राइटिंग के लिए भी guts चाहिए. मैंने कहा जाने दो. Then as it growing as a lecturer, now ये क्या स्टोरीज पब्लिश करनी है, लोग हंसेंगे मेरे पे. एक लोग क्या कहेंगे, इससे हम लोग हट नहीं सकते. 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कहेंगे सबके लिए. तो मैंने कहा लोग बोलेंगे भाई इतनी बड़ी हो गई है और ये क्या स्टोरी है. And one day I thought that these stories will go away, will be lost in time, and why not publish them? क्या होगा, तो बहुत लोग हंसेंगे होगा. Then I collected them and published them. Very recently 2005-06 के आसपास की publish की है. So some of the stories are based on Himachal, some of the stories are based anywhere, everywhere. ऐसी छोटी छोटी रोजमर्रा के इंसिडेंट्स हैं. कुछ में ट्रैवल है ना, ट्रैवल ऑफ नहीं, एक कैरेक्टर है जो ट्रैवल करती है पालनपुर. जो मेरे को अच्छा लगता है वो मेरे कैरेक्टर को अच्छा लगता है. सो दिस इज हाउ आई एम रिफ्लेक्टेड देयर. आई एम नॉट दैट कैरेक्टर, बट शी ऑल्सो डज रिसर्च. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू लाइक ट्रैवलिंग बाय बस, बिकॉज ऊंची होती है ना, सारी सीनरी दिखती है और बहुत खूबसूरत
खूबसूरत है पालनपुर वगैरह कांगड़ा का एरिया. सो आई यूज्ड टू लाइक इट अ लॉट एंड सो आई पुट इट इन दैट स्टोरी. इस तरह की स्टोरी ऐसी बहुत है उसमें कहानी. कुछ तो बिल्कुल ही सिंपल रोजमर्रा. जैसे आपने अभी ट्रैवलिंग की बात करी, तो मैम आप हिमाचल में कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल मैं किया? हिमाचल में बहुत एंड आई लव टू ट्रैवल इन हिमाचल. मैंने एक बुक लिखी है, फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश. इट्स अ कॉफी टेबल. इट इज ऑन ऑल कलर photographs. It is co-written. Him Chatterjee is with me. We went everywhere to various places, various forts and palaces. कई जगह बहुत ऊंचा था, वहाँ मैं सीढ़ी चढ़ा गया था. ये लोग जाते थे, जो मेरे साथ टीम थी वो लोग जाते थे. तो इसलिए मैंने ना देखा और माइन्यूटली ऑब्जर्व किया लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लोगों का बिहेवियर पैटर्न, अलग अलग से देखा. फिर अच्छा लगता था जाना. इधर ऊपर की तरफ जाऊँ तो टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है, तब भी लगता है ये लोग कैसे रहते होंगे. कांगड़ा में 2 जगह 3 जगह है. आई कैन गो एनी टाइम एवरी टाइम. कांगड़ा, गोवा एंड कोची, केरला. आई लव. पानी है, ब्यूटी है. द सेम थिंग इज इन द कोंकण एरिया ऑफ महाराष्ट्र. बहुत ब्यूटी है, हिल भी है, प्लेस भी है, पानी. ये beauty. और मेरे को ये अच्छा लगता है कि मैं जहाँ से ट्रैवल करके आऊँ, मैं आई यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ फोटोग्राफी एंड आई यूज्ड टू राइट एंड इलस्ट्रेट माय आर्टिकल्स. शेड्यूल में बहुत आता है. फिर बाद में चेंजेस हो गए. उस चेंज के साथ, जैसा तुमने पूछा था, उस चेंज के साथ हम पूरी तरह से नहीं बैठ पाते. तब हम कंप्यूटर नहीं आता था ना. Ma'am, what made you write this book? Which one? Forts and Palaces. This was a kind of assignment given by Integrated Himalayan Studies of Himachal Pradesh University. And I feel interested in forts and palaces. Everywhere I go, I like to see them. So फिर इसका हमको मिल गया. I was already retired by that time. तो उनका co-writer था साथ में. So him Chatterjee being an artist. तो हम दोनों ने फोटोग्राफी की. जिसका अच्छा था वो फोटो उसमें डाला. That part he did. I did that. और इस हिसाब से मैंने ये असाइनमेंट प्रोजेक्ट. Yes, ma'am. Ma'am, do you have any literary influences? It's a very tricky question and difficult question also, in the sense influences are there. For example, I told you I like Thomas Hardy a lot. I like Jane Austen. ये सभी को अच्छा लगता है जो इंग्लिश लिटरेचर है. In Indian literature, I like Anita Desai, Shashi Deshpande. These are some of the writers. रश्मि बहुत अच्छा लगता है. तो ये इन्फ्लुएंस आपको ऑब्वियस नहीं है, ये कहीं सबकॉन्शियस में होता है. एंड जब आप लिखने लगते हैं तब उनकी कोई लाइन याद आती है, उनकी कोई सिचुएशन याद आ जाती है. तो इस तरह इन्फ्लुएंस होता है. तो वो बुक के ऊपर क्रिटिकल. तो मगर जो अपनी ओरिजिनल में इन लोगों का इन्फ्लुएंस तो थोड़ा बहुत तो होता ही है. कॉन्शियस नहीं होता, सबकॉन्शियस में. Yes, ma'am. Ma'am, I'd like to request you to kindly read one of the stories. Another one. Yes, ma'am. Okay. Do we have time? Yes, ma'am. Okay. Let me find out. My audiences will be surprised कि मेरे को कहानी मिल नहीं रही है. एक इंग्लिश की भी है, एक हिंदी की मेरे को अच्छी लगती है. वो मैं करना चाहती हूँ क्योंकि वो ना आज के संदर्भ में इसी में थी. मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, मेरे को अच्छी लगी क्योंकि ये आज के संदर्भ में बहुत काम करती है. और इसके भी तुमको बताऊंगी कैसा इन्फ्लुएंस क्या हुआ. इसका नाम है कहानी का बाल देवदार की व्यथा. पहाड़ की ढलान पर एक छोटा सा कोमल सा
देवदार का पेड़ उगा था, अन्य सभी वृक्षों से छोटा था, अतः वे उसे प्यार करते थे। कभी हवा आकर उसे सहला जाती, तो कभी तितली मंडरा कर गुदगुदी करती। सूर्य की सुनहरी किरणें अन्य पेड़ों की टहनियों से छन कर आती और उसे कोमल स्पर्श कर जाती। बर्फ में जब अन्य देवदार की पहली पहली टहनियां बर्फ से के बोझ से चरमरा जाती थी, उस वक्त नीचे खड़ा छोटा देवदार बाल देवदार बड़ा सुरक्षित महसूस करता था उनके नीचे। धीरे धीरे बाल देवदार बड़ा होने लगा, अपने आसपास लगे बड़े बड़े विशालकाय पेड़ों की ओर देखता तो उसे लगता कि उनकी तुलना में तो मैं बहुत छोटा हूँ। कभी यह छोटापन उसे बुरा लगता, सोचता मैं तो नगण्य हूँ, नगण्य जाति, मेरी कोई गिनती नहीं है, मैं तो इतना ऐसे यूजलेस हूँ, नगण्य हूँ। इससे उसमें असंतोष आने लगा। असंतोष एक बड़ा नकारात्मक चीज है, भावना है बड़ी नकारात्मक। उसके बोझ के तले आपका व्यक्तित्व खराब हो जाता है। नकारात्मक होता है नेगेटिव, so you should not be negative, but he started feeling negative. बाल देवदार हमेशा दुखी रहता, उसे बड़ा होने की चाह सताने लगी। अभी भी वह कोमल था, हल्का हरा रंग था, उसके तने व टहनियों में बचपन का लचीलापन था, पर मन में उमंग नहीं थी। छोटे बच्चों के मन में उमंग होती है, उसकी उमंग खत्म थी। बस एक ही धुन थी, भगवान मैं कब इन अन्य देवदारों की भांति बड़ा होऊंगा। अब भी तितलियां उसे गुदगुदाती, हवा सहलाती, बड़े वृक्ष पुचकारते, चिड़िया उसके कानों में संगीत उड़ेलती, परंतु यह सब उसे अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रख सकता। कुछ देर खुशी से झूमने के बाद फिर वही व्यथा, मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब विशालकाय होऊंगा। वैसे बाल देवदार ने कई बार देखा था कि बड़े बड़े वृक्षों को मनुष्य काट कर ले जाते हैं, आजकल कट रहे ना, तब उसे थोड़ा डर लगता, फिर अपने आप को समझाता डरने की भला क्या बात है, मनुष्य इन्हें ट्रक में भरकर ले जाता है, तब इनको कितनी अच्छी दुनिया दिखती है, बाहर की दुनिया देखने को मिलती है। एक दिन उसका मुरझाया चेहरा देखकर एक बूढ़े पेड़ ने कहा भी था, बेटा विशालकाय तो तुम हो ही जाओगे, क्योंकि हमारी जाति ही ऐसी है। हम 100-200 फुट तो आमतौर पे हो जाते हैं। हमारा तना भी बहुत मजबूत होता है, हमारी लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है, और हमारा घेरा है। यह सब समयानुसार होगा, परंतु बड़ा होकर सब आनंद मिलेगा ऐसा नहीं है। आज अपना बचपन जियो, बचपन जैसी सुख शांति सुरक्षा बड़ों का सहारा बड़े होकर मिले ऐसा नहीं है। बाल देवता सुनता रहा, बात तो ठीक थी, पर उसे जची नहीं। आप बड़े हैं, आप दूर दर की वादियां देख सकते हैं, सुंदर दृश्य देखते हैं, बर्फ से ढकी चोटियां, उसका भी आप आनंद उठाते हैं। मैं इतना छोटा और नाटा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, आकाश छूना चाहता हूँ। बड़ा वृक्ष उसकी नासमझी पर मुस्कुरा पड़ा। बस एक दिन एक गौरैया आई, उसकी टहनी पर आकर झूलने लगी, तो बाल देवदार ने बात छेड़ी, बता तो गौरैया, इंसान इन बड़े बड़े पेड़ों को काट कर ले जाता है, कहाँ ले जाता है? गौरैया चहकी, मुझे तो ज्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं अधिक दूर नहीं उड़ सकती, पर हाँ इतना जानती हूँ कि इन पेड़ों से इंसान पानी का जहाज बनाता है और समुद्र पर तैरता है। ये लकड़ी काम आती है। कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी और बहुत सुंदर है, इंसान सारी दुनिया घूमता है जहाजों पे बैठ के। देवदार ने कुछ तो मेरे यह साथी दुनिया देख कर आते हैं,
बाल देवदार ने कुछ उत्सुकता से, कुछ ईर्ष्या से पूछा। यह तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने सुना है कि काटने पर पेड़ सूख जाते हैं और मनुष्य उसकी टहनियां भी काट देता है। टहनियां काट डालते हैं तो हमारे हाथ पांव भी कट जाते हैं। छोटे देवदार एकदम से सिर उठा। इसके बाद कुछ दिनों तक उस अपने छुटपन में ही खुश रहा। कुछ दिनों तक सर्दियां आने को थी। क्रिसमस का पर्व निकट आया था। उधर मनुष्य हाथ में आरी लिए सुंदर सुंदर पेड़ काटने को आ रहे थे, उनको खोज रहे थे। बाल देवदार के पास कभी रुक जाते, उसे सहलाकर आगे बढ़ जाते। बाल देवदार डरता भी था और दुनिया देखने के लिए आतुर भी था। अजीब दुविधा थी। उधर कड़ी सर्दी से बचने के लिए गर्म स्थानों की ओर उड़ते हुए पक्षियों के झुंड आए और ऊंचे पेड़ों पर बैठ गए। बाल देवदार सोचता, देखो ये पक्षी भी ऊंचे पेड़ पे बैठते, मेरे पे तो कोई बैठता भी नहीं है। एक दिन एक नन्हा सा सारस पक्षी छोटे पेड़ पर बैठा तो उसने सारस से पूछ ही लिया कि क्या उसने कभी देखा है कि आदमी इन पेड़ों को कहाँ ले जाता है और क्या करता है। नन्हा सारस बोला, हमें तो इंसान के घरों में हम झांकते नहीं हैं, बस लंबी उड़ान भरते हैं। पानी के किनारे बैठना ही हमारा जीवन है। सर्दियां खत्म होते ही हम फिर उड़ जाएंगे, सो मैं पूरी तरह नहीं बता सकती। तुमको पता है ना, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, पानी के पास बहुत आते हैं, हिमाचल से बहुत आते हैं पॉम्पैट के पास। तो तुमने दुनिया के खूब नज़ारे देखे होंगे। बाल देवदार ने कहा, हाँ सो तो है, सारस बोला। और सुनो, यह पीली चोंच वाला काला सा पक्षी देख रहे हो ना, यह है ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश। यह बर्फों में भी यहीं रहती है। यह बता सकेगी क्योंकि यह मनुष्य से डरती नहीं है, इसके पास पास रहती है। इस पक्षी ने बाल देवदार को बताया कि किस प्रकार इंसान क्रिसमस के दिनों में देवदार के पेड़ घर ले जाता है, सजाता है। उन पर रंग बिरंगी मोमबत्तियां लगाता है। चमकीले कागजों में गिफ्ट लपेट कर उसके ऊपर टांग देते हैं। रुई के फाहे डालकर सुनकर बाल देवदार का मन नाच उठा। वह कल्पना की दुनिया में खो गया। जब उस पर भी रंग बिरंगे कागज मोमबत्तियां लगेंगी। समयानुसार बाल देवदार बढ़ता गया। अब उसकी टहनियां मजबूत हो गई थी, ऊंचाई भी बढ़ गई थी। उसका आकार इतना सुंदर था कि देखने वाला सराहने लगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और एक साल क्रिसमस से लगभग 15 दिन पहले कुछ लोग आए और उसे काट कर ले गए। पक्षियों ने चहचहाकर अपना क्रोध जताया। कुछ मधुमक्खियां लोगों को काटने के लिए दौड़ी। आसपास की लता बेलियों ने आदमियों को लपेट लिया, रोकना चाहा, परंतु इंसान नहीं रुकता ना। वैसे भी स्वार्थी होता है ना मनुष्य। मनुष्य वाला कब रुक सकता था, चला गया फिर। युवा देवदार को ट्रक में खड़े होकर जाना अच्छा लगा। दुनिया देखने का उसका सपना पूरा हो रहा था। उन लोगों ने उसे एक बहुत बड़े व्यापारी को बेच दिया। उसी शाम एक रईस व्यक्ति आया, अपने बच्चों के साथ लेकर, और उसने उस पेड़ को खरीद लिया। देवदार को इस प्रकार बिकना अच्छा नहीं लगा। उसको अरे मैं तो बिक गया, पर उसकी सुंदरता पे सब लोग मोहित हो गए थे। यह मेरी सुंदरता के दाम है, वो सोचने लगा। अहंकार हो गया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देवदार को उस परिवार ने अपनी बैठक के कोने में रखा। उस पर विभिन्न भेंट, रंगीन कागज, कपासनुमा बर्फ और न जाने क्या क्या लगाकर सजा दिया। उस रात युवा देवदार आकर्षण का केंद्र था। सारी रात उस परिवार ने उसके निकट बैठकर बाइबल पढ़ी, गीत गाए, नृत्य किया।
दूसरे दिन तक उस पर कई लटकाई जो भेंट के पैकेट थे, उसको देखकर बच्चे ललचराए, सबको पैकेट मिले। युवा देवदार अपने भाग्य पर बहुत इठलाया। वह चाह रहा था कि जंगल के उसके साथी भी ये सब उसकी शान देखने के लिए कहीं आते तो बड़ा अच्छा होता। पर वह जानता था वृक्ष चलकर नहीं आ सकते। उसने एक चिड़िया को बताना चाहा कि वह जाकर उसके वृक्ष मित्रों को बताए कि वह कितना खुश है, परंतु चिड़िया ने आंखें भर ली। वो युवा देवदार की नादानी पर आंसू आ रही थी, मनुष्य की क्रूरता पे नाराज थी। सोच रही थी कि यदि मनुष्य इसी प्रकार पेड़ काटते रहे तो एक दिन सब वीरान हो जाएगा। फिर उसे कीट पतंगे कहाँ से खाने को मिलेंगे, वो घोंसला कहाँ बनाएगी। क्रिसमस का त्योहार बीत गया और उस पेड़ को सब भूल गए। नए वर्ष की पार्टी तक तो पेड़ सजा सवरा खड़ा रहा, पर अब कोई उसके इर्द गिर्द नहीं मंड रहा था। नव वर्ष के बाद उसे उठाकर गोदाम में डाल दिया। एक बार सोचने लगा, मुझे पूरी कहानी तो किसी ने नहीं बताई। यह तो बताया था कि पीली चोंच वाली चिड़िया ने मेरे को बताया था कि मनुष्य क्रिसमस से पहले देवदार को बहुत सजाते हैं, पर यह तो नहीं बताया कि बाद में उसका क्या करते हैं। एक ऐसा अनादर है। कुछ महीने देवदार उस भयानक अंधेरे गोदाम में पड़ा रहा। फिर एक दिन उसे निकाला गया, उसकी टहनियां काट दी गई और तने के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए गए। अलाव में जलता वह कहराता रहा, पर अब उसे पूछने वाला भला। Now see, we again briefly come to idea. When we used, I told you earlier, we used to stay in Samri. तो पुरानी बात है, तब ये बसें वगैरह नहीं चलती थी, हम पैदल आया जाएगा। When you go from here and just little short of university post office, there is a way. 60s में वहाँ पे नए देवदार लगाए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो थोड़ी सड़क से ऊपर ऊपर हो। When I used to go from there, I always used to think ये छोटे छोटे देवदार कितने सुंदर लगते, बड़े हो जाते हैं तो तना बड़ा मतलब हार्ड सा हो जाता है, ये कितने सुंदर है। अगर इनको नहीं काटा तो, अगर इनको काटा तो, ऐसे ऐसे विचार मेरे मन में। आई वाज स्टडीइंग एट दैट टाइम, तो छोटी थी, तुम्हारे से थोड़ी सी बड़ी। सो ऐसे ऐसे विचार आते थे। मैं रोज एंजॉय करती थी उस देवदार को जाते आते। और मेरा ये पहला मौका था जब मैंने देवदार देखी। हम वीवर इन शिलोंग लिए, वहाँ ये वाले देवदार देखे, वहाँ चील होते हैं, बिकॉज दैट इज एट अ हाइट ऑफ 3000 फीट। यहाँ पे होती है 6000 के आसपास है। सो एनीवे वो पेड़ बड़े बड़े होते गए, एक बार गिर भी गए तो एक पेड़ लैंडस्लाइड में पड़ा। ये उस पेड़ की इतनी से मेरे आइडियाज दिमाग में बैठे। फिर मैंने हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की एक कहानी पढ़ी देवदार। वो कुछ इसी तरह थी। वो छोटा देवदार, ही वांटेड टू बिकम बिग। कहानी का मैंने बताया ना कि कुछ हम जब पढ़ते हैं वो दिमाग में रोल करता रहता है। ये कहानी का, अब मेरी कहानी जो मेरे मन में चल रही थी और एंडरसन की कहानी, दोनों मिल गई मेरी कहानी। और तब मैंने कहा अब ये अगर मैं एंडरसन की लिखती हूँ तो चोरी हो जाएगी, उसकी कहानी नहीं आएगी। ये हमारे देश के पूरा वो है। और आज के संदर्भ मैंने जानबूझ के पढ़ी, क्योंकि यहाँ कितना नुकसान हो रहा है। एक पेड़ काटने की जगह लोग 4-4। So I thought I should read this, although I wanted to read one in English, but I thought this is more real. So with that, we finished the story. Now shoot your questions. It was a very relatable story. मतलब जब हम छोटे होते हैं तो बड़े होने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं ना, बट अब बड़े हो गए तो फिर वापस चाइल्डहुड में। तब लगता है छोटे हो तो अच्छा है, हमको भी लगता है छोटे हो तो अच्छा। There is a दोहा जैसे होते हैं ना, वैसे ही मराठी में ओवी है। ओवी नाम की एक वो है। ये तुम्हारे लिए जनरल नॉलेज की बात है, ऐसे ही बता रही हूँ। तो वो भी दोहे की तरह होती है। उसमें तुकाराम वो कहते हैं कि भगवान, मैं बोलूँगी नहीं मराठी में क्योंकि वो समझेंगे नहीं कोई। वो कहते हैं भगवान छोटा होना ही ठीक है। चींटी है वो चीनी का दाना लेके जाती है,
हाथी इतना बड़ा है, जब वो चलता नहीं है तो उसको अंकुश से मारते हैं, उसको मार पड़ती है। अंकुश जानते हो, तब वैसे छोटा सा कुल्हाड़ी जैसे होता है, उससे उसको जैसे चाबुक मारते हैं घोड़े को, तो ये इसको हाथी को अंकुश मारते हैं। कहता है कि जो छोटा है उसको तो मिल जाता है शुगर का दाना, चीनी का दाना, जो बड़ा है उसको मार दो। सो दैट इज इट। कहते बचपन ठीक। यू आर राइट, वी ऑल फील, यू ऑल्सो फील बड़ा होना Sometimes. something. Ma'am, what kind of writing do you like? Plays, poems, or No, poetry? there was a time when I wrote some poems. एक पोएम थी वो दानव की है, उसमें मैंने ऐसे अभी लिखी थी कुछ 2-3 साल पहले, जब यहाँ पे केदारनाथ में इसी तरह हुआ था 10 साल पहले, तब लिखी थी मैंने। थोड़ा सा उसका इतना ही बता, तो पहाड़ बेजान तो नहीं, पहाड़ बेजान होते तो हमको अमृत तुल्य पानी, बर्फ, ये सुंदरता, ये सब कैसे दे? पहाड़ तो हमने मारा है, हमने उनके बाल बच्चों को काट दिया, हमने उनके हाथ पैर काट दिए। अगर वो आज रिएक्ट कर रहे हैं तो उनकी क्या गलती? सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है, कानूनन सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। दिस इज व्हाट पहाड़ हैज डन टू अस। अब जो हुआ है वो आदमी ने किया है, पहाड़ ने उसका हमको रिट्रीब्यूशन, राइट। वो पूरी नहीं पढ़ी मैंने, कोई उसका साथ बताया। अच्छा, योर क्वेश्चन इज आई डोंट राइट, सो आई एम नॉट मच गुड एट प्लेस। मुझे पढ़ाना था उतना ही पढ़ाया, या पढ़ना था उतना ही पढ़ा, बट आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, आई लाइक टू लाइक शॉर्ट स्टोरी एंड रीड शॉर्ट स्टोरी, बिकॉज शॉर्ट स्टोरी फिनिश वेरी क्विकली। नाउन तो चलता रहेगा ना सालों साल, इतना टाइम नहीं होता, इतना दिमाग भी खत्म हो जाता है। Yes, ma'am. And ma'am, lastly, I'd like to ask, ma'am, what are you writing next? These days I am not writing much, but what I am doing is I have got lots of material. You know it, Gitanjali published in Times of India, Tribune, and various magazines and others. So I thought I will collect them in the form of a book. So at present collection is there. जो बहुत पुराने हैं वो या तो हाथ से लिखे हैं या टाइप हैं, उनको रीटाइप करना पड़ेगा। So that's a long time. But I am planning a book on travel writings in Himachal. Lots of people have traveled, Europeans, and they have had very interesting experiences. I am thinking, but I don't know how much I'll do. आजकल थोड़ा कम कर रही हूँ। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It was so wonderful talking to you. And they say a cheerful young woman, girl, a cheerful young girl sitting with me. So I am also feeling young. मैं छोटी हो गई, तुम बड़ी हो गई। बाल देवदार की। I wanted to take a moment to thank you for the opportunity to interview you. Ma'am, it was such a pleasure to interview you and learn more about your writing process. Your insights are incredibly valuable, and I also wanted to express my gratitude for your generosity with your time. Your willingness to share your knowledge and experiences demonstrates that your commitment to supporting and encouraging fellow writers. Stay tuned for weekly episodes and subscribe to our channels. Next Saturday on 9 September, we will have our next guest, Mr. Ranjot Singh, who will be interviewed by yet another school student, Prachi. Thank you. Thank you very much. Thank you, Kikli team. Thank you very much. This is a wonderful opportunity.